Hi ACCA PM students. So this is Manisha Gupta, your ACCA tutor, and I'm again back with a new video on the solving the past paper. Now in today's video we are again going to solve the long question that's from section C1. The question name is Kappa Company. This one is related to your budgeting and control section of the PM syllabus, and the topic which has been tested in this particular question was related to the variance. Okay, this question was asked in September 2018. It has been around 8 years, right? Yeah. So in today's video, we will solve this question together, and while solving the section C, we should read the first requirement, what the question is asking. Okay, so let's read the requirement together. So calculate the following variance for the last month, the material use variance for each ingredient, and in total, the total material mix variance, total material yield variance. Discuss the problem with the current system of calculating and calculating and reporting variances for assessing the performance of the production manager. So if you will look at the marks for the calculation part, they have allocated 8 plus 3, which is 11 marks, and for this part B, which is solely discussion part, so here they have allocated 9 marks. All right, so in party you don't need to discuss anything, it's just simple calculation. So if you know the formula well, you can tackle this question very easily. Okay, so if you have watched my previous video where I have discussed regarding the tips and trick to learn the variances formula, so if you have watch those video, you can easily link all those formula and perform the calculation, get your 11 marks credit in your hand. Okay, so again I will recap those things. So here question is asking regarding the material use variance as well as total material mix variance and total material yield variance. So here is the formula. Yes, this one. So question has only asked the uses, yield and mix, and if you know the very well that the uses variance has been sub broken down into the material mix and the yield. One more thing, while reading the requirement you should read the requirement 1 or 2 times. Why? Because there might be 1 or 2 things that we need to do in that particular requirement. So if we read the requirement once, there might be chances to get those things missed, and we won't get credit for those part of the requirement. As in this question, if you have read this requirement very careful, you will have gone through this word. They are asking to calculate material use variance for the each ingredient as well as in the total. So if you don't perform the calculation for the each ingredient, then you will not get credit for this particular requirement. If you only perform the total, then you will be get marks allocated for the calculation of total material use variance, but you need to perform both calculation for each as well as in overall total, so that कि आपको सारे marks credit हो, full marks credit मिले. इसके लिए आपको दोनों requirement solve करना is very important. ठीक है, तो फॉर्मूला रिकैप करते हैं. अभी मेरे पास दो फॉर्मूला, हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़ा था. सो दो फॉर्मूला क्या था, एक केस जहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल यूज किया, परचेज किया, उसको मैंने यूज किया, मीन्स वहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है. 100 kg परचेज किया तो 100 kg मैंने प्रोडक्शन में यूज कर लिया. सो दैट मीन्स परचेज इज इक्वल टू यूज. यहाँ पे क्या होता है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आएगा. ठीक है, अब देखोगे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, इफ यू हैव वॉच दोस वीडियो सो याद होगा आपको. ये कुछ नहीं करना है, ये चार्ट अब दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला विल गेट रिकॉर्ड वेरी इजीली. ठीक है, एंड फॉर्मूला पता होने के बाद यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू एंड गेट द व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे एसपी एसपी एसपी, 3 बार एफसी एसपी एंड लास्ट में एपी. ठीक है, उसके बाद एसक्यू, लास्ट में 2 गो एक्यू, बीच में एस मिक्स. इतना बस लिखना है. जो फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्स का डिफरेंस है ये हमारा मटेरियल यील्ड है.
ठीक है। एंड सेकेंड एंड थर्ड का जो डिफरेंस आएगा दैट इज द मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एंड लास्ट टू का डिफरेंस इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस इज आवर मटेरियल यूज वेरिएंस। इस ये मटेरियल यूज का फॉर्मूला होगा, आप अगर याद किए होगे F2 में भी पढ़ा था आपने ये चीज, SP इंटू SQ एंड SP इंटू AQ, ये हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस है। मटेरियल यूजेस को सब ब्रोकन डाउन किया गया है सब पार्ट में, देन मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स आया। ठीक है, जब परचेज इज नॉट इक्वल टू यूज होगा उस केस में कुछ नहीं, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला वही है, बस लिटिल बिट मॉडिफिकेशन किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोग इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे एक्सेल में रखूंगी एंड देन सिनेरियो के अकॉर्डिंग वी विल कैलकुलेट द थिंग्स एंड फाइंड आउट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। पर उससे पहले वी मस्ट रीड द बैकग्राउंड सिनेरियो प्रोवाइडेड सो दैट कि पता चले क्या क्या वैल्यू कहाँ पे है, राइट। ओके, तो Kappa company produce omega, an animal feed made by mixing and heating the three ingredient. So Kappa company एक प्रोडक्ट बना रही है ओमेगा। सो प्लीज पहले वीडियो को ना एंड तक देखो, मैं मिस्टेक भी हाईलाइट करूंगी, आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो वेरिएंस के केस में। नॉट ओनली दैट, आपको इम्प्रूव भी कैसे करना है, कौन सा वैल्यू कैसे खोजना है, कैलकुलेशन का पार्ट सब एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एट टिल एंड। ओके, सो कंपनी कप्पा कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है दैट इज द ओमेगा, एक एनिमल फीड प्रोडक्ट है। बाय मिक्सिंग द थ्री इंग्रेडिएंट, बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग थ्री इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सा है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों चीज को मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा दैट इज द ओमेगा। ठीक है, the company uses standard costing system to monitor its cost, that's fine. Standard material cost of 400 kg of omega is as follow, and यहाँ पे इनपुट दिया गया, मतलब अगर हम लोग 100 kg का ओमेगा क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो उस केस में हमारा मटेरियल कितना कितना लगेगा उसका डिटेल दिया। सो बेसिकली दिस इज अ कॉस्ट कार्ड। आप बाकी का कॉस्ट कार्ड देखोगे तो वहां पे एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है वो चीज एक्सप्लेन करता है, बट यहाँ पे क्या किया है 100 kg के लिए कितना लग रहा है वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है। एक और चीज, एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, आपने अभी तक क्वेश्चन किया होगा तो वहां पे यूनिट्स में दिया गया था यूनिट्स, बट यहाँ पे क्या है केजी, दैट मीन्स फाइनल जो प्रोडक्ट है वो भी केजी में आ रहा है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है वो भी केजी में आ रहा है। ऑलराइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है फाइनल प्रोडक्ट ओमेगा बनाने के लिए वो भी केजी में है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी केजी में आ रहा है, नॉट इन द यूनिट्स। ठीक है, ओके और एक और चीज, जो कॉस्ट कार्ड था, मैंने जैसे बोला कि कॉस्ट कार्ड में क्या होता है एक यूनिट के लिए कितना लगता है उसके बारे में, जो कौन कौन सा मटेरियल लेबर लगता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये मटेरियल का कॉस्ट कार्ड है, वो भी 100 kg यूनिट के लिए, 100 kg ऑफ व्हाट, ओमेगा, ये 100 kg में है, नॉट इन द यूनिट, बट अगर हम लोग 100 kg ऑफ ओमेगा बना रहे हैं तो उस केस में ये मटेरियल लगेगा। सो दैट मीन्स हमको 1 kg का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स सबको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ये केजी को। ठीक है, ये केजी वाला, ये 100 केजी के लिए 40 लग रही है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड है जो हम लोग ने 10th में 12th में पढ़ा था। सो 100 केजी के लिए 40 लग रही है, तो 1 केजी के लिए कितना लगेगा 40 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.4। सिमिलरली बीटा की बात करूं, बीटा 60 केजी लग रही है, तो अगर मुझे 1 केजी बनाना है तो ये ओमेगा वाला प्रोडक्ट, तो मुझे मेरा बीटा कितना लगेगा, दैट इज 0.6, एंड हाउ आई हैव गॉट दिस वैल्यू 60 डिवाइड बाई 100। गामा के लिए भी वही चीज, कॉस्ट पर केजी में तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट, सो अब नोट्स में क्या दिया, मिक्सिंग एंड हीटिंग प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड इवापोरेशन लॉस। तो मतलब हम लोग अगर 100 kg मटेरियल बनाना फाइनल प्रोडक्ट, उसके में कुछ जो मटेरियल डालेंगे, इनपुट डालेंगे, उसमें सर्टेन लॉस हो रही है। अल्फा, बीटा, गामा आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटी एंड प्राइस वेरी सिग्निफिकेंटली ईयर टू ईयर। दैट मीन्स इस प्रोडक्ट का वैल्यू हर एक ईयर चेंज हो रहा है। Okay, standard price are set as the average market price over the last 5 years. Here is the blunder, जो हमारा part 2 requirement जो था, क्वेश्चन में क्या पूछा, discuss the problem with the current system of calculating and reporting the variance of assessing the performance of production manager. अब देखो क्वेश्चन ने बोला कि जो ये मटेरियल यूज हो रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इनका क्वालिटी की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, जो हर एक ईयर इट्स गोइंग टू बी चेंजेस। ठीक है, बट जो ये स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है ये तो उन्होंने लास्ट 5 years का एवरेज लिया है।
अगर मेरा हर एक साल प्राइस चेंज हो रहा है तो मैं लास्ट 5 years का एवरेज भी निकालूंगी तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा ना, है ना। सो यहाँ पे एक लूप होल्स दिखा, प्रॉब्लम दिखा, ठीक है। Kappa company has a purchasing manager who is responsible for pricing and supplier contract. So यहाँ पे अब क्या है हमारा जो ये परचेजिंग मैनेजर है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका प्राइसिंग के लिए एज वेल एज सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये कैसे यूज कर सकते हैं? परचेजिंग मैनेजर अगर रिस्पॉन्सिबल है प्राइसिंग के लिए, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इन केस अगर प्राइस वेरिएंस आ रहा है वो चीज हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर के परफॉर्मेंस असेस करते वक्त नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके पार्ट में फॉल नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि परचेजिंग मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइसिंग के लिए। सो प्राइस वेरिएंस किसके कारण आएगा? परचेजिंग मैनेजर के लिए, नॉट फॉर ड्यू टू द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर यूजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट फॉर द प्राइसिंग वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स इज सेट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वाओ, तो स्टैंडर्ड मिक्स जो प्रोडक्शन में हो रही है वो तो प्रोडक्शन मैनेजर को अच्छे से पता होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से पता होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या पता प्रोडक्शन अंदर में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। सो इट्स अनफेयर, राइट। अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। किसको सेट करना चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बट यहाँ पे कौन सेट कर रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। The last time this was done was the product launch, which was 5 years ago. It has not changed since. So obviously negative variance आएगा क्योंकि प्राइस भी हर एक ईयर चेंज हो रही है, क्वालिटी भी हर एक ईयर चेंज हो रही है। So हमारा ये लास्ट 5 years से अपडेट ही नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स स्टैंडर्ड जो हमारे पास है इट्स नॉट अप टू डेटेड, राइट। इसकी वजह से देयर माइट बी चांसेस फॉर द गेटिंग दैट वर्स वेरिएंसेस, ठीक है। Now what they have said, last month 4600 kg of omega was produced using the following input. अब ये 4600 kg है ना, अब यहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन आएगा? आप ये केजी देख के ना आप अल्फा गामा बीटा का केजी से लिंक करोगे, बट दिस वन इज द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यूनिट वी हैव प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट ऑफ व्हाट? ओमेगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। वो हम लोग ने एक्चुअल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया? दैट इज द 4600 यूनिट्स, बट यहाँ पे क्या है? केजी। सो 4600 केजी ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ओके। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। सो इनपुट में हमारा क्या क्या है? एक्चुअली जो यूज हुआ है प्रोडक्शन में, अल्फा की बात की जाए तो इतना इतना केजी यूज हुआ, अल्फा बीटा गामा, इनका कॉस्ट पर केजी कितना पड़ा वो एंड टोटल कॉस्ट दिया गया। At the end of each month, the production manager receives a standard cost operating statement from the Kappa company performance manager. The statement contains the material price and uses variance, labor rate and efficiency variance, and overhead expenditure and the efficiency variances for the previous month. No commentary on the variance is given, and the production manager received no other feedback on the efficiency of the omega process. So अब ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग पार्ट बी में यूज कर सकते हैं फॉर डिस्कशन पार्ट। अब इस पे भी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। पहले इजी मार्क्स। इजी मार्क्स क्या हमारा यहाँ? कैलकुलेशन वो भी 11 मार्क्स। इफ यू नो द फॉर्मूला वेल यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करती हूँ, देन आई विल बी कम बैक। तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया परचेज क्लोजिंग इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, सो वी विल अज्यूम हियर दैट परचेज इज इक्वल टू आवर यूजेस, राइट। सो परचेज इज इक्वल टू यूजेस में हमारा ये फॉर्मूला था जो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। वन मोर थिंग, आप कोई भी पार्ट रिक्वायरमेंट का सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू मेंशन द नेम, कौन से पार्ट रिक्वायरमेंट का सॉल्व कर रहे हो। अगर नहीं नेम करोगे तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगा, मतलब लाइक मिक्स मार्क्स हो सकता है। सो मार्क देने में भी लाइक होता है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म हुआ उनको पता नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर टू पुट ए हेडिंग और जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसका नाम मैंने वो रख दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला भी कॉपी कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का वैल्यू पता करना है, एंड एट द एंड वी विल कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स, यील्ड एंड जो यूजेस वेरिएंस जो पूछा गया है क्वेश्चन में। सो हमारे पास 3 मटेरियल है, राइट। इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट क्या हमारा? ओमेगा को बनाने के लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, दैट्स अल्फा, सेकंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा, ओके। तो एसपी मतलब क्या? आप अगर मेरा फॉर्म ये नोट्स रेफर करोगे, यहाँ पे एसपी मतलब क्या? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। ये किस चीज में होगा? डॉलर पर केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल जो किस में होगा? डॉलर पर केजी। सो कॉस्ट पर केजी। सो आपको कहीं भी दिखा गया कॉस्ट पर केजी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में? यस, ये रहा। सो वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। सो डॉलर 2 पर केजी, ये हमारा एसपी हो गया।
बीटा के लिए $5 per kg, गामा के लिए $1 per kg। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? ओके, ऑलराइट। नाउ अब एसक्यू ऐसा पार्ट है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिगाड़ते हैं। ये कॉमन एरिया है आप एग्जाम में बिगाड़ने का, मिस्टेक करने का, मार्क्स लूज करने का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या ले रही हूँ। जो एसक्यू होता है ना, सो एसक्यू अगर यहाँ पे देखोगे, मैंने इस एसक्यू में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये कैलकुलेट कैसे होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट अगर बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसके लिए वो इंग्रेडिएंट कितना लग रहा है वो लेंगे इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। सो यही एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन ना लेके बजटेड वाला स्टूडेंट लेते हैं, विच इज द कॉमन एरिया ऑफ द मिस्टेक। ठीक है, ये अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ, बैक टू द क्वेश्चन जाती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट, मतलब अगर मैं एक ओमेगा बना रही हूँ तो मेरा अल्फा कितना लगेगा, यहाँ पे कितना दिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में 40। ये किसके लिए है, 100 kg के लिए। यहाँ पे दूसरा मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला पता होता है बट मिस्टेकली में दे टुक द 40, बट ये तो किसके लिए, 100 kg के लिए, नॉट फॉर द पर kg। ये ओमेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अगर 100 यूनिट ऑफ ओमेगा बना रहे हैं, मैं केजी के सट्टा यूनिट यूज कर रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन लिंक द थिंग्स। सो अगर 100 यूनिट ऑफ ओमेगा बना रही हूँ, उस केस में 40 kg लग रहा है। अगर मैं 1 kg बनाऊंगी, 1 यूनिट बनाऊंगी तो कितना लगेगा, इट्स क्वाइट सिंपल, 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, एंड फॉर्मूला का दूसरा पार्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा, इज 4600 kg। सो वी विल मल्टीप्लाई इट अगेन 4600 kg। यहाँ तक ठीक है, ऑल राइट। बीटा के लिए भी सेम करेंगे, बीटा के लिए भी सेम करेंगे, दैट इज 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 4600। गामा के लिए भी इन सेम थिंग, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 4600। ये पार्ट ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ऑल राइट, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए नहीं, बस मैं दिखा रही हूँ किस किस वैल्यू कहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, ये एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह दे मिस्टेकली टुक द बजटेड वन, फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड थिंग, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का जो वैल्यू दिया गया है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का, वो देखना वो 1 यूनिट के लिए है कि 100 यूनिट के लिए है कि 50 यूनिट के लिए है। ठीक है, 1 यूनिट के लिए दिया गया तो नो प्रॉब्लम, सेम एज कॉपी पेस्ट कर लो। बट अगर मान लो या जैसे इस केस में 100 kg के लिए दिया गया था, दैट मीन्स 1 kg का हम लोग को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ वी कैलकुलेटेड, 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 4600। ये पार्ट क्लियर। नाउ अगेन एसपी मिक्स की बात करें जाए तो एसपी मिक्स में भी हम लोग यही सब चीज लेंगे, 2 पर kg जो उस टाइम देखा था हम लोग ने, अगेन $5 पर kg एंड $1 पर kg जो कि पहले था। अब जहां जहां एसपीए में ये रख देती हूँ सो दैट कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, ठीक है, अब आती है एक्स मिक्स। अब एक्स मिक्स को समझो। एक्स मिक्स क्या है, अगर मेरा फॉर्मूला में आप विजिट करोगे, एक्स मिक्स क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल फॉर द एक्चुअल यूजेस। सो एक्चुअल यूजेस मतलब जो एक्चुअल यूजेस क्या हुआ है, कितना इंग्रेडिएंट इन एक्चुअल हम लोग ने यूज किया है, दैट इज द 5620। एक्चुअली हम लोग ने तीनों इंग्रेडिएंट को अगर मिलाऊं, हम लोग ने 5620 kg यूज किया है। ठीक है, ये 5620 kg में अगर हम लोग बजट के अकॉर्डिंग एलोकेट करें तो कितना कितना एलोकेट होगा, दैट मीन्स ये 120 में 40 का परसेंटेज कितना, 120 में 40 का परसेंटेज कितना, 33%। अब मैं 5620 जो था ना, उसको मैं इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगी। सिंपली हम लोग स्टैंडर्ड के बेसिस में ये एक्चुअल जो यूजेस हुआ है केजी, उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स स्टैंडर्ड मिक्स फॉर द एक्चुअल यूजेस, यही बोला गया ना, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल यूजेस। सो दैट मीन्स पहले हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि मेरा एज पर स्टैंडर्ड परसेंटेज कितना था अल्फा यूज करने का। अल्फा हम लोग ने कितना डिसाइड किया था यूज करेंगे,
40 डिवाइड बाई 120 करेंगे तो ये परसेंटेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. देन वी विल मल्टीप्लाई विद द एक्चुअल यूजेज ऑफ मटेरियल विच इज 5620. ठीक है. सिमिलरली मैं इसके लिए भी करूंगी, बीटा के लिए. बीटा में कितना यूज किया है? 60 डिवाइड बाई 120 करूँ तो वी हैव डिसाइडेड टू यूज 50% ऑफ द बीटा इन द फाइनल प्रोडक्ट. बट एक्चुअल में कितना यूज किया वो निकाल रही है. उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक्चुअल यूजेस को प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है यहाँ पे. ओके. इंटू 5620. अब एक्चुअली इस वाले फॉर्मूला का पोर्शन तो क्वाइट इजी है. ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी यूज दिया गया है, कितना कितना यूज हुआ है? 22 से फॉर द अल्फा. फिर उसके बाद में बीटा के लिए कितना यूज हुआ है? 2500. एंड गामा के लिए कितना यूज हुआ है? 920. ये हमारा यूज हुआ है. ये तो अभी चाहिए नहीं क्योंकि हम लोगों को प्राइस वेरिएंस नहीं निकालना है, तो ये चाहिए नहीं. अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट करती हूँ. हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ, वी कैन डू दैट पार्ट एज वेल, बट क्वेश्चन में प्राइस का नहीं कुछ कहीं पूछा हुआ है. सिर्फ मटेरियल यूजेस इच इंग्रेडिएंट के लिए एंड टोटल मटेरियल मिक्स एंड इल्ड वेरिएंस, बस इतना ही और कुछ नहीं है. अब ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे एक बार इक्वल टू डाल के देखो. आई थिंक ये सॉल्व हो जाएगा. ओके. ओके, ये हो गया. ये भी हो गया. ये भी पार्ट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज करते हैं हम लोग, इक्वल टू डाल के. सकते हो. डन. इसको राउंड ऑफ कर दो, इट विल लुक मोर प्रोफेशनल थोड़ा. इसको भी सॉल्व करते हैं अगेन. हो गया. सो अब और एक और चीज क्या कर सकते हैं जो कि ये डॉलर में है, सो वी कैन ऐड द डॉलर साइन हियर. अब और प्रोफेशनल दिख रहा है, राइट. अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल यूजेस वेरिएंस. सो यहाँ पे सॉरी यूजेस है ना. यस. टोटल यूजेस वेरिएंस किसके किसके लिए कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द अल्फा, बीटा एंड गामा. यूजेस वेरी का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस. सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लिंक कर देंगे, कुछ नहीं, बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे इसको यूज कर देती हूँ एंड इसको टोटल एंड लेट मी मैच विद द फाइनल आंसर. तो डन. अब ये जो नेगेटिव है दैट मीन्स ये एडवर्स, ये पॉजिटिव है फेवरेबल. यहाँ कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है तो फेवरेबल. ये हो गया हमारा यूज वेरिएंस. बट क्वेश्चन ने एक और चीज पूछा हुआ, दो चीज और पूछा हुआ है, दैट्स मटेरियल वन एज वेल. सो यहाँ पे मैं 1 देती हूँ. ओके. एंड 2 में इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. रुको. तो ये 2 कर दूंगी. अब मैं 2 में क्या पूछा हुआ है? टोटल मटेरियल
मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो अल्फा के लिए मटेरियल मिक्स किस किस का डिफरेंस था? मटेरियल मिक्स वाज डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस क्या हमारा? मटेरियल मिक्स। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिंक करेंगे अगेन, बाकी काम खुद हो जाएगा। सो दिस माइनस दिस एंड इसी को कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर देती हूँ। डन, आ गया हमारा। सो दिस इज व्हाट आस्क्ड बाय द क्वेश्चन टोटल। सॉरी, ये पॉजिटिव है तो ये फेवरेबल। नाउ पार्ट 3 क्या था रिक्वायरमेंट का हमारा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस, राइट। तो यील्ड वाले में फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस, राइट। तो ये करने के बाद डन। सो अगेन ये एडवर्स है तो नेगेटिव विद एडवर्स, ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स एंड ये भी एडवर्स। दैट्स इट। ये हो गया 11 मार्क्स का कैलकुलेशन का पार्ट विच इज क्वाइट इजी. I hope you guys now no more feel challenging while solving this kind of question. ठीक है. Now part B. Part B में क्या बोला? Discuss the problem with the current system of calculating and operating reporting variances for assessing the performance of production manager. ठीक है. So it's for the 9 marks. So let me solve by myself. Then I will be come back to this question requirement. Here are requirement B का part. So following problem can be considered in the current system of variance analysis. So first क्या था जो हम लोग ने पढ़ा भी था in I think second point, yeah. They said that standard price are set at the average market price over the last 5 years. So यही चीज मैंने यहाँ पे पिक किया and इसका नाम दे दिया outdated standard price. So standard price for the ingredient are based on the average price from the past 5 years or the last 5 years. This is not appropriate. Why? Because ingredient price as well as quality is changing year on year as mentioned in the scenario, and it is changing very significantly. So using the outdated price can result in the misleading variance calculation as well as wrong decision can be taken. So shorter time frames such as last year's price would be more accurate and relevant, give them more accurate or relevant result, right? So this is the first problem we have picked from the scenario. Now second problem was the standard yeah, one more thing that has been mentioned in the point second. Kappa company has a purchase manager who is responsible for pricing and supplier contract. So again I have mentioned this point, the purchase manager is responsible for the pricing and supplier contract. If this is the case, then why is the production manager performance have been assessed based on the variance wrong person held accountable? So basically you can write this much only. So just a second, let me remove this. तो अक्सर एक्सप्लेनेशन के पार्ट में क्या होता है, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, दे जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द सिनेरियो प्रोवाइडेड. आपको खुद का भी इनपुट रखना पड़ेगा. कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा. आपको खुद से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे क्या होगा, वो एक्सप्लेन करना होगा. सो जैसे ये स्टैंडर्ड प्राइस का मैंने पिक किया, इसको नॉट ओनली पिक किया, मैंने क्लैरिफाई भी किया, एक्सप्लेन भी किया. ठीक है. So point second को भी मैं clarify कर रही हूँ. The purchase manager is responsible for negotiating the price and choosing the supplier. So it is unfair to assess the performance of production manager based on the decision which is taken by the purchasing manager. So जो भी आपका price variance आ रहा है उसके लिए कौन responsible है? परचेज मैनेजर, नॉट द प्रोडक्शन मैनेजर. सो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है. सो ये डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर के आउटसाइड द कंट्रोल के पार्ट में. सो अगर मैं इसके बेसिस में प्रोडक्शन मैनेजर का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रही हूँ, देन ऑब्वियसली दे विल गेट डीमोटिवेटेड. उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हाई होगा. दे विल नॉट पुश देमसेल्फ टू वर्क हार्ड टू गेट द स्टैंडर्ड अचीव्ड. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है. थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला था क्या, द स्टैंडर्ड मिक्स इज सेट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट. जो भी ये भी एक प्रॉब्लम था. ओके. सो ये भी एक प्रॉब्लम था. मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, अब मैं क्या एक्सप्लेन किया वो पढ़ो आप. So the standard mix of the ingredient is decided by the finance team or department who
don't know what's going in the production department. उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस का, आई मीन एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, दे आर नॉट फैमिलियर टू दैट एज वेल. सो अगर ये चीज़ प्रोडक्शन मैनेजर खुद से सेट करें स्टैंडर्ड मिक्स, तो वो ज़्यादा बेटर होगा और एक्यूरेट रिजल्ट देगा. बट यहाँ पे हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को रखे हुए हैं जिसको तो कुछ पता नहीं है ना. सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. The standard mix of the ingredient is decided by the finance team, who may not fully understand the technical needs of the production process. It would be better if the production manager who understands how material behave during the manufacturing is involved in setting the standard mix. This issue is reflected in the large and opposite mix and yield variance, suggesting the mix may no longer be suitable. So obviously हमारा जो mix था, yield था, उस नेगेटिव ही आया था, आई थिंक. या आपका yield है, नेगेटिव आया हुआ है, बाकी तो ठीक भी है. तो ये किसके वजह से होता है, ऑब्वियसली उनको आइडिया नहीं है मिक्स के बारे में, इसके वजह से अराइज हो रहा है. ठीक है, ये पार्ट हो गया. एक और पार्ट था कि उन्होंने बोला कि जो लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ था ये 5 साल पहले, तो ये भी क्या है, आउटडेटेड है. अब 5 साल में आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्राइस बहुत चेंज हुआ होगा. सो अगेन हम लोग ये यूज करते जाएंगे तो हमारा वेरिएंस एडवर्स आएगा और उसके बेसिस में जो भी डिसीजन लेंगे वो रॉन्ग जाएगा. ठीक है, सो वही बात मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. यू कैन रीड बाय योरसेल्फ एज वेल, आप इजिली समझ सकते हो. 5th में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे उन्होंने बोला था material price, uses variance, labor rate, efficiency variance, overhead manufacturing. अभी हमें मिक्स और यील्ड का बात नहीं किया गया है. ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं प्रोवाइड किया गया इस स्टेटमेंट में. ठीक है, सो ये तो ऑब्वियसली रिलेवेंट है ना, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर का परफॉर्मेंस इसी वेरिएंस पे डिस्कस कर सकते हैं. सो वही बात हम लोग ने लिखा है कि जो स्टैंडर्ड ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेटमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो यूजेस वेरिएंस है उसको ब्रेक डाउन करके प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर के रोल से बहुत रिलेवेंट है ना. सो यही मैंने चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो इन द इजी एंड सिंपल लैंग्वेज. और भी पॉइंट है, यू कैन रीड दिस बाय योर सेल्फ. ठीक है, बट आपको खुद से एक बार ट्राई करना होगा. डिस्कशन के पार्ट में मैं बोलूँ, बुक का आंसर पढ़ो, उससे यूजफुल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू गिव द ट्राई फ्रॉम योर एंड. सो इट्स बेटर कि आप खुद से ट्राई करो एंड देन कम बैक टू द आंसर और वीडियो देखो. देन यू विल हैव ए क्लैरिटी कि आप कहाँ मिस कर रहे हो, आप कैसे सोच सकते हो जब आंसर ड्राफ्टिंग में. ये अच्छा होगा आपके लिए, ये आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है. सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो आई नीड टू स्टॉप हियर. सो आई होप दिस इज यूजफुल and see you in the next video.